Going on to the next MCQ, that will be question number 4. MCQ number 4. Read करूं? चलो. Find the curved surface area of a cone. Curved surface area of a cone निकालना है. Okay, so I'll just write that down. We need to find curved surface area of cone. Okay, this is the question. Okay, आगे पढ़ते हैं. Curved surface area of a cone whose radius is 7 centimeter and height is 24 centimeter. So radius is 7 centimeter and height of this is 24 centimeter. ये हमारा एक cone है, ठीक है? So let's start. So you know if you have a cone, right? This is a cone. So if this is a cone, then this is the height h of the cone. This is the radius r of the cone. And L is the slant height of the cone, right? ये 3 dimensions cone के बड़े important होते हैं. तो curved surface area का फॉर्मूला क्या है? It is pi r l, right? Pi r l. उसके लिए pi r l लगेगा. L कैसा निकालोगे? यहां से निकालना पड़ेगा using this concept. So you know L square is equals to r square plus h square. So from here L square will be r square, that will be 7 square plus 24 का square. 7 square is 49, 24 ka square is 576. So this is L square. So this is L square is 625. So L will be root of 625. So 625 का root कितना होता है? It is 25 centimeters. So therefore it's clear from here L is 25 centimeter. एक बार L मिल गया तो curved surface area निकाल दो. तो यहाँ पर the formula for curved surface area कोन के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल, राइट? ऑप्शन देखो. ओके, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो पाई इंटू आर इंटू एल. ऑप्शन में पाई नहीं है, मतलब वैल्यू रखना पड़ेगा. सो इट विल बी 22/7 इंटू आर. आर इज 7 इंटू एल. ओके, दैट इज 25. तो बड़ा क्लियर है. 7 कैंसिल. सो 22 इंटू 25 कितना होता है? 500 नहीं 600 600. So that should be 600 matching with your option. कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है. Pi RL. Okay, have I done it right? So 25 into 20 होता है this. Sorry, 550, right? 550. My calculations were okay. This is 550 centimeter square. Which is what is it matching with? It's matching with the option number B. Okay. So इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया. चलो, बड़ा सिंपल सा था. एल निकाला, फिर वहां से कर्व सरफेस एरिया निकाला. कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. यू नो अ सिलेंडर लुक्स समथिंग लाइक दिस. एंड सिलेंडर में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है उसका रेडियस और एक होता है उसका हाइट. Okay, fine. So सबसे पहले आया radius. The radius of the curved surface area of a cylinder is 440 centimeter square. So curved surface area दिया है. तो curved surf area short में लिखता हूं, ठीक है? Curved surface area of a cylinder is how much? 440 centimeter square. Radius is 5, so radius is 5 centimeter. निकालना क्या है? Find its height. अरे 1 मिनट का काम है. height. So apply the formula. Curved surface area of a cylinder, 2 pi RH. Right? So I can start like this. Curved surf area of cylinder. You should know this formula. 2 pi RH. Right? So 440 will be equal to, option देखो pi में है, तो मतलब pi रखना नहीं है. 2 pi अपनी जगह पे. R is 5 into H. So take pi down, 2 down, 5 down. So this will be 440 upon 2 pi into 5. So this is H, right? H अकेला रह गया. Now 2 into 5 is nothing but 10. तो 10 इसको cancel कर देगा. So therefore 44 upon pi हो जाएगा. So H का value will be 44 upon pi centimeter. So from here, pretty clear, no problem whatsoever. The height of the cylinder turns out to be 44 upon pi, matching with option A. Matching with option A. ठीक है? So MCQ number 5 का answer is option A. Move on to the next one. Okay, move on to the next one. The next one after question 5 will be naturally question number 6. 6 पढ़ते हैं, चलो पढ़े.
अ कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर। ओके, रिमेंबर जब कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ओके, इज कास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, मतलब एक कोन है जिसको मैं छोटा सा ही बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, और साथ में मेरे पास एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस मेल्ट करने के बाद भी याद रखो रेडियस सेम रखा है। तो अगर इसका रेडियस है r तो इसका भी रेडियस मैं बोलूंगा r ही है। ओके, दोनों का रेडियस r, सेम r रेडियस, सच दैट द बेस ऑफ द कोन, ओके, सच एज द बेस ऑफ द कोन, तो रेडियस सेम मतलब बेस सेम। ओके, बेस सेम मतलब ये जो यहां पर इसका बेस है और ये यहां पर ये उसका बेस है, दोनों का सेम एरिया होगा, राइट। बेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r सेम है तो पाई आर स्क्वायर होगा सेम। If the height of the cylinder is 5 centimeter, let's assume that इसका height is capital H. इसका height, it's capital H, that is 5 centimeter. Okay. Find the height of the cone. मतलब let's say इसका height है small h, जो निकालना है मुझे। Let's start. So दोस्तों simple concept है, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि जब मेल्ट करते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को और कास्ट करते हैं तो क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, राइट। सो फ्रॉम दैट कंसेप्ट वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। एच स्मॉल h इसके लिए लिख रहा हूं क्योंकि कोन का हाइट है स्मॉल h। Similarly, volume of a cylinder is pi r square capital H. दोनों साइड मैंने r सेम रखा है क्योंकि रेडियस सेम है, राइट। अच्छा, यहां से बहुत आराम से पाई पाई दोनों साइड से और r स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर this will become h/3 will be equal to capital H, you know it is 5. So cross. So 3 into 5 will be 15. So h will be equal to 15 centimeter. जो हाइट मिल गया, कितना मिल गया हाइट, 15 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ हाइट एज 15 सेंटीमीटर, मैचिंग विद ऑप्शन ए, राइट, मैचिंग विद ऑप्शन ए। सो विद दिस हमने कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया, 6th एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया। लेट मी टेक द 7th वन इन दिस स्पेस। कम ऑन, आई हैव दिस स्पेस, लेट मी टेक द 7th वन। छोटा सा ये देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose side is 0.01 centimeter. So volume of cube निकालना है in which the side of the cube is given to you as 0.01 centimeter. अरे बड़ा आसान काम। Volume of a cube मैंने बताया, फॉर्मूला ये डायरेक्ट। So volume of cube, it's nothing but side cube, right? साइड का क्यूब करना होता है। So साइड का क्यूब करना होता है मतलब 0.01 का क्यूब करना है। So 0.01 will be, का cube will be 0.01 into 0.01 into 0.01. That means दो position, that means 6 positions. So it will be 0, 0, 0, 0, 0, 1, right. So 6 positions move कर दिया. This will be nothing but centimeter cube. So this is nothing but my volume of my cube, right. निकाल लिया आंसर, मैच हो रहा है, हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है, ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, राइट। दिस इज मैचिंग विद योर ऑप्शन D. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब सिंपल फॉर्मूला दैट इज आई मे से व्हाट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब। ओके फाइन। 8th वाला भी छोटा सा क्वेश्चन है, हम इतने में स्पेस में खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी डू इट। सो 8 इज लाइक दिस, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब इज वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। ओके, सो अब वॉल्यूम दिया है और साइड निकालना है। अरे ये तो एकदम बच्चों का काम है, नींद में करने आना चाहिए। So apply the formula. You know volume of a cube, डायरेक्ट लिखता हूं, it is nothing but अभी तो देखा साइड क्यूब, राइट। So you know this is 1, हमें 1 will be equal to साइड क्यूब। क्यूब रूट लगा दो ना, क्यूब रूट लगा दो। So इस साइड अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 लगाऊंगा तो क्यूब चला जाएगा। What is cube root of 3? Cube root of 3 is cube root of 1. Cube root of 1 will be 1, ठीक है। Root of 1 is 1. Cube root of 1 is 1. To the power 4 root is also 1 का 1 का कभी भी रूट लगाओ, कुछ भी लगाओ, 1 ही आने वाला है, चाहे स्क्वायर करो। तो therefore the side will be 1 meter, ठीक है। So 1 meter is the side matching with what? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है 1 meter, वेरी इंटरेस्टिंग। बट यू नो, सबको पता है 1 meter is 100 सेंटीमीटर, राइट। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है।
1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, बड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो फ्रॉम हियर दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी. तो ऑप्शन जो है मेरे इतने डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया है, तो हमने घुमा के दिया, तो घुमा के देने दो ना, टेंशन नहीं. 1 मीटर आया था, 1 meter is 100 centimeter. So therefore the volume of the cube, if it is 1 meter, the side is 100 centimeter, matching with option C. Okay. So with this, we have completed all the MCQs of question number 1. Question number 1 is ended here. Now we'll make a note, then we'll move on to question number 2.